السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصباح غاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان اب قلعدم نہیں رہے گی۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دے دی ہے۔ وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کی سمری کابینہ کو ارسال کی تھی۔ 4 نومبر کو پنجاب کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان سے قلعدم کا اسٹیٹس ہٹانے کی سمری منظور کی تھی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے عثمان مظفر سے۔ جی عثمان مظفر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، وفاقی حکومت نے قلعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی ہٹا دی ہے اور اس کی ہٹانے کی منظوری جو ہے سرکولیشن سمری کے ذریعے دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے سمری جو تھی وہ وفاقی کابینہ کو بھجوائی گئی، جو کہ سرکولیشن سمری کو اپروو کر دیا گیا ہے۔ اب تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اب قلعدم نہیں رہی، جبکہ جو پابندیاں تھیں وہ بھی ہٹا دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے یہ اقدامات جو تھے پنجاب حکومت کی سفارش پہ کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان مظفر۔ اور اب بات کریں گے چینی کے بحران کی۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں چینی اسٹورز اور دکانوں سے غائب ہو گئی ہے۔ جہاں مل رہی ہے وہاں دکاندار منمانی ریٹ وصول کر رہے ہیں۔ چینی 150 روپے فی کلو سے زائد پر فروخت کی جا رہی ہے۔ کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ کی صورتحال بھی مختلف نہیں ہے۔ عوام کہتے ہیں چینی مہنگی ہونے سے چائے تو پھیکی ہوئی، لہجوں کی مٹھاس بھی غائب ہو گئی ہے۔ چینی بڑھ گئی، اب عوام کیا کرے گی؟ بھوکے مرے گی۔ چینی راؤنڈ اباؤٹ 70-80 تک آنی چاہیے، کلو آنی چاہیے۔ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، چینی آخر گئی تو گئی کہاں؟ چینی کے دام بے لگام، کہاں جائیں بے بس عوام۔ اسلام آباد میں چینی کی قیمت نے 150 کراس کر لی۔ چینی اور آٹے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب عوام کیا کرے گی؟ بھوکے مرے گی۔ حکومت سے یہ مطالبہ بھی کچھ رحم کرے خدا کا۔ چینی راؤنڈ اباؤٹ 70-80 تک آنی چاہیے، کلو آنی چاہیے۔ شہر قائد کا حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اسٹورز پر چینی نایاب ہو گئی۔ جہاں ہے وہاں من مانے ریٹ وصول کیے جا رہے ہیں۔ بس اس وقت نا امپورٹڈ چینی ہے، وہ ہم لوگ 90 روپے کلو سیل کر رہے ہیں، وہ تو اویلیبل ہے، مگر جو کسٹمر ہے نا وہ یہ چینی پسند نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے جی، اور جو پاکستانی چینی ہے وہ ہمیں بالکل نہیں مل رہی، اور اس کا ریٹ بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں یہ پاکستانی جو ہماری اپنی چینی ہے وہ تو ہمیں مل نہیں رہی، اور جو امپورٹڈ چینی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ اس کی مٹھاس ہے نہ کوئی چیز ہے۔ پیسے وہ لگاتے ہیں، چیز اچھی ملتی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی چینی نے بے چینی پھیلا دی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں چینی 150 روپے فی کلو سے زائد پر فروخت کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں چینی ذخیرہ کرنے والے مافیا کے خلاف انتظامیہ نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ مختلف شہروں سے ٹنوں کے حساب سے ذخیرہ کی گئی چینی برآمد کر کے کئی گوداموں کو سیل کر دیا گیا۔ چینی چور اب نو مور۔ پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف انتظامیہ نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ تابڑ توڑ ایکشن، کئی مقامات پر چھاپے، کئی گودام سیل کر ڈالے۔ چشتیہ میں اسسٹنٹ کمشنر کی کارروائی، 2 گوداموں سے چینی کے 3000 سے زائد تھیلے برآمد کر لیے، دونوں گوداموں کو سیل کر دیا۔ چینی کے تھیلوں سے لدا ٹریلر بھی تحویل میں لے لیا۔ برآمد چینی 2 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی ہے۔ ادھر منجر آباد میں 3 کروڑ 55 لاکھ روپے مالیت کی چینی برآمد کر لی گئی۔ چینی 2 گوداموں میں چھپائی گئی تھی جنہیں سیل کر دیا گیا۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں صوبے میں چینی کا وافر اسٹاک موجود ہے، لیکن ذخیرہ اندوزوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ڈیلرز اور بروکرز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ملز مالکان بھی اس دھندے میں ملوث پائے گئے تو کارروائی ہوگی۔ مارکیٹ میں وافر مقدار میں چینی موجود ہے، سپلائی کی شارٹیج نہیں ہے۔ کرشنگ سیزن سٹارٹ ہونے تک یہ بہت وافر سٹاک ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ درآمد شدہ چینی یوز کریں۔
हुकूमत इसके ऊपर 5 अरब की सब्सिडी दे रही है। वजीर आला पंजाब ने वाजे कर दिया है, चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि माफिया के हाथों आम आदमी का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब में चीनी के स्टॉक, कीमत और तलब की सूरत हाल पर ईवान वजीर आला में उस्मान बुज़दार की जेर सदारत आला सत्ता इजलास में बताया गया कि लाहौर समेत पंजाब में चीनी का 20 रोज से जायद का स्टॉक मौजूद है। लाहौर में 200 बड़े स्टोर्स और 1600 दुकानों पर चीनी 90 रुपए किलो में मिल रही है। वजीर आला ने चीनी से मुतालिक अदालती अहकामात पर एडवोकेट जनरल और क्रशिंग सीजन के जल्द आगाज के लिए वजीर सनत मियां असलम इकबाल को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आला का कहना था कि मार्केट में इस्तेकाम के लिए चीनी की छोटी दुकानों पर दस्तयाबी भी यकीनी बनाई जाए। कराची में डेयरी फार्मर एसोसिएशन की मनमानी जारी है। पीर से दूध 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगा। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे के बाद डेयरी एसोसिएशन ने कीमतों में मुख्तस की गई रकम से जायद इजाफा करने की ठान ली है। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स के मुताबिक 2 माह बाद कीमत में मजीद 30 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाएगा। और अभी आपको बताएं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून आपको बताएं मरियम नवाज ने अवाम से हिकमत अमली के लिए राय मांग ली है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पीटीएम अवाम की तकालीफ का मदावा करना चाहती है, आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा होना चाहती है। उन्होंने अवाम से सवाल किया कि आपके ख्याल में हमारा इंतहाई इकदाम क्या होना चाहिए। आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत के गढ़े में दाखिल कर दी, गज भर की बातें नहीं निकल सकती। उन्होंने अवाम का एहसास नहीं। उन्होंने सवाल किया कि अवाम 2017 वाला पाकिस्तान चाहते हैं या फाका कशी वाला। मुल्क में महंगाई और हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मुत्तहरिक अपोजिशन रहनुमाओं के साथ टेलीफोनिक राब्ते बढ़ा लिए। शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और महमूद खान अचकजई को फोन घुमाया। मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब ऑर्डिनेंस पर मुशावरत की। तीनों रहनुमाओं में इत्तेफाक किया गया कि नया पाकिस्तान महंगा तरीन पाकिस्तान बन चुका। पीटीआई अवाम के लिए परेशानी, तकलीफ और इंतकाम बन चुकी। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म इस्तीफा लिखकर अवाम को फौरी रिलीफ दे। जुल्म की ये हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। चीनी का बहरान जिम्मेदार कौन? वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं मुल्क में महंगी चीनी की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत बंद शुगर मिल्स नहीं चलवा रही। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी ने इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कहा चीनी बहरान की जिम्मेदार सिंध हुकूमत नहीं, वफाकी हुकूमत है। अगस्त में शुगर मिल्स ने हुकूमत को पेशगी आगाह कर दिया था। हुकूमत बताए उसने क्या किया। जो चीनी का जो सब्जेक्ट है वो वफाकी सब्जेक्ट नहीं है। सूबों में इस वक्त जो डिफॉल्ट किया है अपनी ऑब्लिगेशन में वो सिंध हुकूमत ने किया। ये सारी की सारी जो सूरत हाल पैदा हुई है, चीनी की हो, गंदम की हो, ये इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से। उसके बाद उन्होंने वफाक से जो चीनी है वो देने के लिए तैयार है। उन्होंने न मांगी न वफाक से मदद लेने के लिए तैयार है। इमरान खान की हुकूमत की नालायकियों की सजा, नाअहलियों की सजा इस मुल्क के करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। मार्केट में एक स्पेकुलेशन की गई, वो स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने का भी जिम्मेदार होता है सूबाई हुकूमतों के जो प्राइस को कंट्रोल करने के लोग होते हैं। ये हमने देखा पंजाब में तो कल छापे पड़ गए, फैक्ट्रियों पे भी छापे मार दिए गए और उनको जो है पुश किया गया। हमने इस तरह की कोई एक्सरसाइज सिंध में नहीं सुनी। शुगर मिल एसोसिएशन वाले हैं, इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को बताया था कि आगे चलकर चीनी के क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। अगर उन्होंने बताया था, गलत है सही मुझे नहीं पता। इस हुकूमत ने अगस्त से लेकर नवंबर तक चीनी की उस मतबके किल्लत को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या इकदाम किए सिवाय शोर शराबे के। 15 तारीख से साउथ पंजाब में क्रशिंग शुरू हो जाएगी और 20 नवंबर से बाकी पंजाब में हो जाएगी। सिंध न जाने कब करता है। सिंध को अगर चीनी चाहिए, दरामदी चीनी, तो वो भी मांग ले। वफाकी हुकूमत देने के लिए तैयार है। इस मुल्क में जिस तरह गंदम सबसे ज्यादा पंजाब में पैदा होती है, इसी तरह चीनी भी सबसे ज्यादा पंजाब में पैदा होती है। मैं आपके सामने
वजाहत के साथ दोबारा कह रहा हूँ, बार बार कह चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की एक भी शुगर मिल नहीं है। शरीफों और जरदारियों की शुगर मिलों के बायस से चीनी महंगी हुई। वफाकी वजीर मुराद सईद का मानसेना में जलसे से खिताब, कहा इन्हें अवाम का दर्द है तो चीनी सस्ती करें। वज़ीर आज़म ने अवाम के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर मवासिलात ने आइंदा सिंध में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने का दावा कर डाला। नून लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को महंगाई के हवाले से आड़े हाथों लिया। साद रफीक ने कहा कि वजीर आजम का रिलीफ पैकेज असल में तकलीफ पैकेज है। चीनी और गन्ने के बावजूद चीनी बाहर से मंगवाना पड़ रही है। अयाज सादिक ने कहा कि सिलेक्शन बहुत हो चुकी, अब बार बार सिलेक्शन नहीं होगी। वजीर आजम IMF की पॉलिसीज पर चल रहे हैं। उन्होंने जो महंगाई रिलीफ पैकेज दिया है वो महंगाई तकलीफ पैकेज। चीनी का सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, शुगर मिल्स मौजूद हैं, गन्ना मौजूद है, मगर आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है। महंगाई से लोग बदहाल हो गए, बेहिस हुक्मरानों के कान पे जू तक नहीं, और हम पर इल्जाम लगाते थे। अपने पल्ले कुछ बचा है, डस्का इलेक्शन का जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई, और फिर मुल्क की मईशत को भी आपने ICU में लाके खड़ा कर, आपने ईवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दी। इलेक्शन रिफॉर्म का लेके आए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ये कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। पहले RTS और अब EVM वो लाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का इख्तियार मिले, मगर उसका तरीका क्या होना चाहिए वो हमसे डिस्कस नहीं करना चाहते। सिलेक्शन तो बहुत हो चुकी है, बार बार सिलेक्शन नहीं हो सकती। साफ जाहिर हो गया कि इमरान खान साहब IMF की पॉलिसीज के मुताबिक चल रहे हैं। कराची में नाजिम जोकियों के कत्ल पर वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। गवर्नर सिंध ने वोसा को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। इमरान इस्माइल कहते हैं जंगल का कानून नहीं चलने देंगे। जुल्म करने वालों की जगह जेल है, असेंबली नहीं, उन्हें ऐवान से बाहर फेंकेंगे। हलीम आदिल शेख ने चीफ जस्टिस से सोमोटो लेने का मुतालबा कर दिया। कराची में वडेरे के हाथों नाजिम जोकियों का कत्ल, वजीर आजम इमरान खान का नोटिस। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मेमन गोट पहुंचे। थाने वालों ने हम लोग कोई एक्शन नहीं लिया। गवर्नर सिंध ने लवाहिकीन से ताजियत की और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। जो मेजबान है वो अपनों पे गोलियां चला रहे हैं, वो तलोर के शिकार करने आए, ये अपने लोगों का शिकार हो रहा है यहाँ पे। तो लिहाजा ये नाजिम जोकियों का शिकार का लाइसेंस तो किसी ने नहीं दिया, न वफाक ने दिया, न सूबाई हुकूमत ने दिया। ये नाजिम जोकियों को किसने मारा, उसका क्या ताल्लुक बनता था इस चीज से। लिहाजा इसको देखा जाएगा बहुत गौर से। इमरान इस्माइल ने कहा जालिमों की जगह जेल में बनती है, असेंबली में नहीं। उन तमाम अनासिर को जो जुल्म और बर्बरियत पर यकीन रखते हैं उन्हें असेंबली से उठा के बाहर फेंकें। उनकी हकीकी जगह जेल में बनती है, असेंबली में नहीं। इंशाअल्लाह जो बन पड़ेगा वफाकी हुकूमत से जितना मुमकिन होगा हम आपकी मदद करेंगे। आपको लॉयर चाहिए हो, वकील की जरूरत हो, वो भी हम आपको देंगे। आपको JAT भी इंशाल्लाह बना के देंगे और इस वाक़े को यहाँ तक छोड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह इसको आखिर तक लेकर जाएंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने चीफ जस्टिस से सुमोटो लेने का मुतालबा कर दिया। सरदारों की जाती जेलें, सरदारों का कानून, सरदारों का मारपीट, सरदारों के फैसले, कहाँ रह रहे हैं हम, किस सदी में हैं हम, कौन सा कानून है? चीफ जस्टिस साहब ये कैसे है जिसको उठा लो मारो? कौन से सरदार? ये चोर, ये डाकू, ये किलर्स। हलीम आदिल शेख ने कहा बिलावल भुट्टो असेंबली को कातिलों से पाक कराएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने नाजिम जोखियों के कातिल को फौरी फांसी देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि सिंध में वडेरा शाही है, यहाँ जमहूरियत यरगमाल है। मकतूल नाजिम जोखियों के भाई अफजल जोखियों और दीगर लवाहिकीन से उनके घर जाकर मुलाकात और ताजियत के मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मलीर में होने वाला इंसानियत सोज वाकया सिंध में वडेरा शाही और गुलामी के निजाम की असल तस्वीर है। यहाँ इंसानों की अपनी कोई मर्जी नहीं, यहाँ जमहूरियत यरगमाल है। कातिलों को इबरतनाक सजा दी जाए। नाजिम जोखियों के भाई अफजल जोखियों ने नाजिम जोखियों पर तशद्दुद और कत्ल के दिल दहलाने वाले वाक़े की तफसीलात से आगाह किया और मुतालबा किया कि भाई नाजिम जोखियों के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए।
कराची के इलाके सपुरा गोड स्कीम 33 के निजी स्कूल के वॉशरूम में खुफिया कैमरों का मामला। जिला इंतजामिया ने दी हैरिक्स स्कूल सील कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया है कि महकमा तालीम की सिफारिश पर इमारत को सील किया गया है। महकमा तालीम की सिफारिश पर FIA और साइबर क्राइम की टीम मजीद तहकीकात करेगी। खातून टीचर की शिकायत पर महकमा तालीम की टीम ने छापा मारकर कैमरा बरामद किया और गुज़िश्ता रोज स्कूल की रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल की थी। खबरों का सिलसिला जारी है, फिल वक्त एक ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए आज न्यूज।